So children, let us move further. Now today I am going to tell you about the factors that affect the India's climate. Beginning with this topic, let us revise whatever I taught you in the previous lecture about the climatic control. I discussed about the 6 major controls of the climate of any place, in which I discussed about the children latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and the relief features. Already I told you about the latitude, altitude, pressure and wind system, and in distance from the sea I would like to tell you that as the distance from the sea increases, its influence decreases. Okay, you have seen that near the coastal areas, there we have a moderate type of climate, and as we move inside towards India, we experience the extreme weather conditions. For example, you have seen the climate of Bombay, and you can experience the climate which we people have in Karnal or in Delhi. We are having an extreme type of weather over here. That is, summers are in its extreme. Side by side, when winters are there, we experience extreme cold weather condition over here. So this condition is known as continentality. Continentality means a very hot during summers and very cold during winters. So in this way, distance from the sea also affects the climate of a place. After that, I would like to tell you about the ocean currents also. Ocean currents, along with the onshore winds, they also affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled down if the winds are onshore. Okay? Next is last one, relief. Relief features also plays an important role in the climate of a place. Like in a high mountains, they act as the barriers for the cold or hot winds. They may also cause the precipitation if they are high enough, and they lie in the path of the rain bearing winds also. हिमालयाज जो हैं वो रेन बेरिंग विंड्स के पाथ में भी आते हैं, इसलिए आप देखोगे कि हिमालयाज में एक साइड जो है काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती है, ठीक है, एंड दूसरी साइड जिसको कि लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है. आई वुड लाइक टू शो यू हियर विद एन एग्जांपल. हिमालयाज में जब ये रेन बेरिंग विंड्स आती हैं, इस तरफ पानी बरसाती हैं, एंड ये साइड ड्राई होता है, एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज अ लीवर्ड साइड. वी कॉल इट एज अ लीवर्ड साइड. ओके, सो वन साइड ऑफ द माउंटेन्स they lie to the parts of the rain bearing winds and they have heavy rainfall, and the other side is the leeward side of the mountains which remains dry over here. Now children, I am going to move further. Now the main topic which I am going to discuss today is about the factors that affects India's climate. Just now I told you all the climatic controls. अब चलो इंडिया की तरफ मूव करते हैं, इंडिया का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, इन लैटिट्यूड आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country. Okay, I would like to show you on the map of India once again. Just see over here. The Tropic of Cancer passes through the center of India. Okay, center of India, and almost you have seen that half of the country, it lies in the tropical region, and the other half lies in the subtropical region. Okay, so that is why India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. इसलिए हम इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल क्लाइमेट को भी इंजॉय करते हैं एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को भी इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट. इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ. यू नो दैट टुवर्ड्स द नॉर्थ वी हैव अ माउंटेन्स ओवर हियर, एंड द एवरेज हाइट इज अबाउट माउंटेन्स इज 6,000 मीटर्स हाइट के होते हैं. सो इसके साथ साथ इंडिया हैज़ अ लार्ज एरिया ऑफ द कोस्टल एरिया, जहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन जो है, एलिवेशन मीन्स हाइट, कितना ऊंचा है, 30 मीटर्स ऊंचाई पे है.
ठीक है, 30 मीटर्स ऊंचाई पे है। तो एक तरफ तो हिमालयाज, जो वहाँ से जो ठंडी हवा आती है, ये कोल्ड विंड्स को प्रिवेंट करता है सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से जो भी ठंडी हवाएं आती है वो एक बैरियर्स की तरह से रहता है और ये इन ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट इट एक्सपीरियंसेस comparatively milder winters as compared to the Central Asia. That is why we the people of India यहाँ पे mild winters होते हैं in comparison of to the people living in the Central Asia. Clear? Now this is the altitude of our country. Now we'll come to the pressure and the winds. Let me explain you about the pressure and the winds. Okay. In pressure and winds, I would like to tell you first of all कि climate and weather conditions, ठीक है। इंडिया में जो climate and weather conditions जो हैं, these are associated, both are related to each other and are governed with the following characteristics, ठीक है। ये जो pressure wind system है ये एरिया का, ये स्पेशली किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स कितने हाइट पे है, ठीक है। आपका जो प्रेशर विंड्स है ये आपके लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है एंड साइड बाय साइड ऑन द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, ओके। एंड दिस इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न ऑल्सो. So climate or weather condition in India are dependent on pressure and surface winds, upper air circulation and the western cyclonic disturbances and the tropical cyclones. ये तीन पे डिपेंड होता है हमारा फैक्टर्स क्लाइमेट का. अब आपको मालूम है कि इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रीजन में लाई करता है. सबसे पहले लेट मी फाइंड आउट नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या होती हैं. नाउ यू कैन सी हियर इन दिस मैप, यू कैन सी हियर ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं. अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल एरिया पे इक्वेटर पे, आई एम सॉरी, इक्वेटर पे दैट इज एट 0 डिग्री, यहाँ पे सनरेज जो है ये सन है, सनरेज वर्टिकल पड़ रही है और जैसे जैसे ऊपर जाती है स्लैंट हो जाती है. ओके जब ये वर्टिकल रेज यहाँ पे पड़ती है तो वो इस एरिया को वार्म कर देती है, इक्वेटर रीजन को. एंड यू ऑलरेडी नो कि हमारा जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन में मूव भी करता रहता है. इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है हमारा अर्थ. ठीक है. नाउ अब क्या होता है जब सन रेज इस पे वर्टिकल पड़ती है तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ से जो ड्राई विंड उठती है वो अब उठ के ऊपर की तरफ जाती है. ऊपर की तरफ जाके ये यहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ पे एरिया लो प्रेशर से विंड उठ के हाई प्रेशर के एरिया की तरफ जाती है और हाई प्रेशर से एरिया से ये फिर लो प्रेशर एरिया पे जाएगी और ये स्लैंट वे में जाती है. दिस मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड, माने ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रही है. ओके सो इसलिए जो है इसको हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं. क्लियर. इसी तरह से नीचे की तरफ अब हम आते हैं. सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर से विंड उठती है, उठने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है. डाइवर्ज क्यों होती है? ये ऊपर जाती है, ये नीचे आती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब आपको देखोगे, सपोज करो अब आप मूव कर रहे हो, आपके हाथ में सपोज करो एक पेन है. अब जब आप पेन को जो है फेंकोगे तो वो पेन पीछे जाके गिरेगा, ना कि आगे. ठीक है. वाई? बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आपकी वेलोसिटी जो है उस पेन से ज़्यादा है. इन द सेम वे अर्थ जब मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होती है. तो एटमॉस्फेयर का जो है वो पीछे की तरफ जो है हवा को फेंकता है. तो इंडिया जो है हमारा यहाँ पे है. दिस इज़ इंडिया. 1 मिनट. इंडिया देखो ये रहा, यू कैन सी इंडिया ओवर हियर. अब ये इंडिया जो है आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पे आ रही हैं. तो इंडिया जो इट लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एंड दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. आप देखो ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट से हाई प्रेशर एरिया से ये विंड जो यहाँ से आ रही है. ठीक है. ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर. एंड ये कहाँ जा रही है? साउथ की तरफ. ये साउथ मीन्स नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है. यहाँ पे जो है
इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, ये यहाँ से उठी ऊपर गई, ये साउथ की तरफ आ रही है, क्यों? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रही है राइट साइड में, राइट साइड में मीन्स इधर की तरफ आ रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। नाउ कोरियोलिस फोर्स क्या है? सेम ये फोर्स जो है इट इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। अभी मैंने आपको बताया जब अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर जो है आपको मालूम है अर्थ इज कवर्ड बाय एन एटमॉस्फेयर, अर्थ तेजी से रोटेट हो रहा है, एटमॉस्फेयर थोड़ा इससे स्लो स्पीड में है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, ये इधर की तरफ होने लगता है, इसी तरह से ये इधर की तरफ जाता है। तो आप देखोगे कि ये जो है ये कोरियोलिसिस फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज कोरियो, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये कोरियोलिसिस फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोरियोलिसिस फील्ड। अब ये जो विंड्स ऊपर से आती हैं, आपको मालूम है ये विंड्स ड्राई होती हैं, मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत लिटिल मॉइस्चर होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी लैंड पे आके ब्लो करती हैं, इसलिए ये लिटिल रेन लाती हैं या रेन ही नहीं लाती हैं। इसलिए अब आप सोचोगे कि अगर ये रेन नहीं लाती हैं तो इंडिया में फिर रेन कहाँ से आती है, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? इसका भी कारण है। अब आपको यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स समझ में आ गया है। नाउ ये जो प्रेशर एंड विंड्स कंडीशंस इंडिया के ऊपर है ये बड़ी यूनिक हैं। अब आपको बताती हूँ यूनिक क्यों है, ठीक है। अब आपको मालूम है कोरियोलिसिस लॉ क्या हो गया, प्रेशर विंड्स क्या हो गई हैं। अब हम प्रेशर विंड की कंडीशन इंडिया के अंदर ढूंढते हैं कि इंडिया के अंदर फिर रेन आती कहाँ से है। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। लेट मी शो यू फर्दर इन सम अदर। ओके, पहले अब ये समझा देती हूँ। एयर मासेस सर्कुलेट ग्लोबली, अभी मैंने इसको बताया था। इक्वेटर के पास क्या होता है, दिस इज योर 1 मिनट, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है ना। इक्वेटर पे जो टेम्परेचर्स होते हैं ये हाई होता है, ठीक है। लैंड एंड वाटर मासेस यहाँ पे दोनों इट गेट्स हीटेड अप एंड इससे क्या होता है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन पे एयर हीट होके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर जाती है। मोर एयर राइजिंग बीनीथ इट्स फोर्स द एयर मास टू स्प्रेड नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स पोल, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स पोल्स की तरफ ये मूव करती है। उसके बाद क्या होता है, कोरियोलिसिस इफेक्ट आपको बता दिया कैसे होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ जब रोटेट करता है इस डायरेक्शन में ऐसे करके, जब रोटेट होता है अर्थ इस डायरेक्शन में, आई एम सॉरी इन दिस वे, अर्थ रोटेट करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग एयर मास। अब इसके साथ साथ जब अर्थ रोटेट करेगा तो उसकी एयर मास भी, एटमॉस्फेयर भी उसका रोटेट करता है, इसके ऊपर जो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ये भी इसके साथ साथ घूमता है गोल गोल, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड, एटमॉस्फेयर की स्पीड अर्थ की स्पीड से कम होती है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, सपोज करो हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जब हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं अगर हमारा कोई सामान गिरता है तो हमेशा पीछे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि हमारी स्पीड तेज है, हम स्पीड पे तेज जा रहे हैं, लेकिन वो पेन की स्पीड या कोई सामान की स्पीड उतनी तेज नहीं है तो वो पीछे की तरफ गिरेगी। इसी तरह से सेम यही है, अर्थ अपनी स्पीड पे मूव कर रहा है, एटमॉस्फेयर स्लो स्पीड पे, तो बट नेचुरल एटमॉस्फेयर स्लो स्पीड पे तो वो पीछे की तरफ, अर्थ आगे चल रहा है, एटमॉस्फेयर का जो वो पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। वंस अगेन लेट मी क्लियर टू यू, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये अर्थ जब घूमेगा तो एटमॉस्फेयर इधर हो रहा है और इधर वाला इधर जा रहा है, ठीक है ना, सदर्न हेमिस्फीयर। ये कोरियोलिस इफेक्ट बनाता है, ठीक है, लेकिन ये इक्वेटर पे एब्सेंट रहता है एंड इससे क्या होता है, सिंपल जो फ्लो होता है इक्वेटर टू द पोल्स वो नहीं होता है, इसको हम फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको कोरियोलिस फोर्स का। नाउ अब देखिए आगे चलते हैं, इंडिया के अंदर क्या होता है। प्रेशर और विंड्स कंडीशन इंडिया में यूनिक है। विंटर में देयर इज हाई प्रेशर इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अब आप इंडिया का लो मैप, लेट अस टेक द मैप ऑफ इंडिया। अब आप यहां पे देखोगे, ठीक है, यहां पे नॉर्थ में आपके हिमालयाज हैं, ठीक है। कोल्ड ड्राई विंड्स, अब यहां पे जो है हवा आती है, ठंडी हवा आती है, ये कोल्ड ड्राई विंड्स होती हैं, इस रीजन्स में आती हैं
टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस। अब ये विंड्स जो हैं ये लो प्रेशर एरियाज में आती हैं, ठीक है, साउथ में यहाँ पे आती हैं। अब क्या होता है, अब आपको एक चीज़ बताएं, विंटर्स एंड समर्स दोनों डिफरेंट होते हैं हमारे यहाँ। अब क्या होता है, समर्स में लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पे इंटीरियर में फॉर्म हो जाता है अंदर की तरफ। ये देखिए आपका इस बेल्ट में लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, विंड्स का जो डायरेक्शन है टोटली रिवर्स हो जाता है समर्स में। एयर क्या करती है, अब हाई प्रेशर एरिया से ओवर द सदर्न इंडियन ओशन पे आती है एंड इन द विच डायरेक्शन, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर टू द सदर्न इंडियन ओशन में आती है एंड इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में आती है, ऊपर से आती है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, नीचे की तरफ इंडिया के ऊपर। लेट मी शो यू हियर, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे आती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है एंड फिर इट टर्न राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। अब ये लो, यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, फिर यहाँ से ये ड्राई विंड्स ऊपर जाती है लो प्रेशर एरियाज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको कि हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी बोलते हैं। एंड दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर, ये वार्म मोशंस हैं, मॉइस्चर लेके आती है और पूरे मेनलैंड पे रेनफॉल लेकर आती है। क्लियर। उसके बाद अब आप देखिए इंडिया में लो एंड हाई प्रेशर, आपकी यहाँ पे देखिए इन समर्स में, यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर इन विंटर हो जाता है एंड लो प्रेशर इन समर, ठीक है। लो प्रेशर इन समर, समर्स में जब लो प्रेशर होगी तो बट नेचुरली ये विंड्स यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगी। वंस अगेन लेट मी शो यू, ये विंड्स यहाँ से यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अब विंटर में क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है तो ये लो प्रेशर की तरफ जाएगी, इधर आती है। क्यों, इस तरह से जो है ये विंड यहाँ पे कॉज होती है इंडिया के अंदर। आफ्टर दैट उसके बाद जो है ओके, उसके बाद कोस्टल एरियाज हैव इक्वेबल क्लाइमेट। कोस्टल एरियाज आर दीज एरियाज, कोस्टल एरियाज आर दीज एरियाज, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेबल क्लाइमेट है, लेकिन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के अंदर जब देखोगे वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम मीन्स विंटर्स हाई होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, और समर्स भी एक्सट्रीम पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ये इक्वेबल क्लाइमेट होता है। इक्वेबल मीन्स यहाँ पे जो है समर आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट अब उसके बाद हम लेते हैं रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स में भी आप देखोगे, हाँ, वन मोर जेट स्ट्रीम ऑल्सो, लेट मी एक्सप्लेन, आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू डू दिस जेट स्ट्रीम। नाउ अब आप देखोगे अपर एयर जो सर्कुलेशन होता है इस रीजन में, ये वेस्टर्ली फ्लो से होता है। अपर एयर सर्कुलेशन इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है, जिसको कि हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। एंड ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। वंस अगेन ये आपका इक्वेटर हो गया, हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब आप देखोगे ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं आपके 27 टू 30 डिग्री ये यहाँ पे लोकेटेड होती हैं, इसलिए इसको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। एंड इंडिया में ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं इट ब्लोज साउथ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज के सदर्न साइड पे ब्लो करती है ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। सो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस जो हैं आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, अब आपको दिखाते हैं, ये जो हम बोलते हैं ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है ये आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्ली फ्लो लेके आती है, वेस्टर्न साइड से ये लेके आती है इंडिया के अंदर। तो इन समर्स सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ टू द हिमालयाज, ये नॉर्थ की तरफ आते हैं हिमालयाज के, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सन। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं दोनों
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं, जिसको कि हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ये इंडिया पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर आती है अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो ये आपको इसमें जेट स्ट्रीम एंड व्हाट इज कोरियोलिस ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ना वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस के बाद में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, इसका भी जरूरी है। जेट स्ट्रीम इन समर यू कैन सी विद एन डायग्राम ओवर हियर। आप देखिए ये यहाँ पे क्या है, वेस्टर्ली से आपको देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू, ये देखिए, ठीक है ना, ये दोनों वे से आपके यहाँ पे हो रहा है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है, दीज आर द वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स ओनली, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है? बाय द वेस्टर्नली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। ये मेडिटेरेनियन रीजन से उठ के आता है, ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आता है, एंड ये नॉर्थ का वेदर को अफेक्ट करता है, नॉर्थ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन को ये अफेक्ट करता है, वेस्टर्ली विंड्स इसको। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर कब आता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। एंड ये किस वजह से आता है? ईस्टर्ली फ्लो की वजह से आता है। सो ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये कोस्टल रीजन्स के कंट्री को इफेक्ट करता है, ठीक है। कभी कभी तुमने सुना होगा कि उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में जो डिज़ास्टर हो गया, साइक्लोन्स आ गया, ये इसी की वजह से आता है, जो ये ईस्टर्ली विंड्स जो लेकर आती हैं। अब नेक्स्ट ये आपने इतना कर लिया। अब नेक्स्ट जो है इंडिया मानसून के बारे में बाद में बताएंगे, तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडियाज क्लाइमेट, जिसमें आपको मैंने लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स में प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ाया था। नाउ टुमारो आई एम गोइंग टू, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडियन मानसून।